फर्स्ट है डिजिटल colonialism. Former Indian Vice President has raised the concern of the digital colonialism, stating dependence on the foreign digital infrastructure and not invasion as the prime threat to sovereignty. About the digital colonialism, क्या meaning? It is a theoretical framework that establishes the primacy in digital technology by the big tech companies that extract, analyze, and own user data for their own profit and market influence. Digital colonialism. उसके बाद it includes the decentralized capture and management of data. Decentralized capture and management of data from individual with or without their explicit consent, threatening state and individual autonomy. उसके बाद डेटा में की enabler for digital colonialism. Highlighting economic gains by enabling big organizations to analyze user behavior and preferences. Competitive edge facilitates precise prediction about the both individual and collective behavior. Individual and both collective behavior. Advanced artificial intelligence में क्या है? Particularly in the deep learning, employing extensive data set to train and enhance AI models. Boosting productivity, exchange value of data, allows individual or origins or organization to monetize its insights by the sharing data with others seeking similar benefit. तो इसमें क्या क्या है? हाईलाइटेड इकोनॉमिक गेन है, कंपिटिटिव एज, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डाटा, ये सब है डिजिटल कॉलोनिज्म का है जो की इनेबलर है. की पिलर ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टराइजिंग डिजिटल कॉलोनिज्म में क्या है? इकोनॉमिक डोमिनेशन, big corporation size that resources of the foreign countries by creating technological dependencies. Example, monopoly over search engine, गूगल का है जैसे, ठीक है. डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है. सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है. colonialism का एग्जाम्पल. हाँ, और चाइना इन सब का अल्टरनेटिव बना रखा है सबका. हाँ, और वहाँ के लोग वही सब यूज करते हैं. इंपीरियल कंट्रोल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या है? प्रोप्राइटी सॉफ्टवेयर एंड द नॉन फ्री लाइसेंसिंग regime restrict modification access for other action, locking them out of digital self-sufficiency. एग्जाम्पल क्या है? ऐप स्टोर पॉलिसी, एप्पल, गूगल exercise unilateral decision over what apps and features are allowed. ग्लोबल सर्विलेंस कैपिटलिज्म में क्या है? एडवांस डाटा साइंस, मशीन लर्निंग इनेबल कॉपरेशंस to track user behavior and make favorable business decision based on global surveillance. Example क्या है? Facebook enable mass data harvesting by the third party like the Cambridge Analytica, influencing election वगैरह करता है ये लोग. Tech hegemony में क्या है? Few big tech firm steer and narrative around the technology should expand and define the economic ramification. Economic ramification क्या होगा? ramification. क्या हो सकता है? इकोनॉमिक रेमिफिकेशन के अंदर क्या क्या आएगा? मतलब इकोनॉमी में कोई चेंजेस, मेरा जो Economic ramification refers to the financial economic consequences or ripple effect that result from the particular event, policy and decision. Both पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है इसका. डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है. कोविड ये सब है ना.
तो नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस दोनों। जैसे कि अमेज़न AWS, माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर है ना? गूगल क्लाउड कंट्रोल अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड क्लाउड सर्विस, गिविंग them unparalleled power and the global data storage, processing and analytica. Cultural imperialism में क्या है? Depicted in the homogeneity and superiority of the technologies owned by the few and underpinning values, language and culture of others. Example में क्या है? Content curation and the algorithmic bias on the social platform prioritize content that aligns with dominant cultural values. Discourse of benevolence में क्या है? Farming digital technology as evidently good, connectivity as progress and the human right. Example में क्या है? Facebook का है free basics roll out in Africa. Position the philanthropy was criticized by the potentially serving as a tool of expand market share and acquire user data. ठीक है, फ्री बेसिस करके कुछ है जो अफ्रीका में रोल आउट किया गया है फेसबुक के द्वारा। की इशू में क्या होगा? राइजिंग द नॉर्थ साउथ डिस्पैरिटी, ये सब है ना? नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, प्राइवेसी होगा, डिजिटल राइट होगा, इसे उसके बाद है एक्सटेंशियल थ्रेट टू द लोकल बिजनेस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकता है ना? बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग वगैरह होता है, डिफिकल्टी इन रेगुलेशन है, नेटवर्क इफेक्ट है, वंस प्लेटफॉर्म रीच क्रिटिकल मास, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉक इन द यूजर, ठीक है, स्टिफलिंग लोकल कंपटीशन। सब मेजर क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट लेके आई है 2023 में। ये मेजर नहीं है, ये बचाव है, इसको डिफेंस कहते हैं। To establish a comprehensive framework for protection and processing of personal data and is applicable to processing of the personal data outside India if it is offering goods or service in India. Compensation Act 2002 to prevent unfair practice, protects consumer and ensure free trade. Global advocacy. India has advocated strongly at G20, BRICS and WTO for the data localization, digital sovereignty and fair rules. Example में क्या? India's G20 leadership task force was created for expanding digital public infrastructure. Other efforts में क्या है? Open network for digital commerce, an alternative to ई-कॉमर्स मोनोपोलीज है ना? इंडिया स्टैक, इंडिया ऑन फाउंडेशनल DPI। अदर नेशंस में क्या? यूरोपियन यूनियन डाटा एक्ट, डाटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट लेके आया यूरोपियन यूनियन। चाइना क्या है? डिजिटल सिल्क रोड लेके आया। अ कोर कंपोनेंट ऑफ द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव aims to building closer ties with the state in emerging market in telecommunication, AI, cloud computing। तो इन सब में वो लेके आया है डिजिटल सिल्क रोड। कौन लेके आया है? चाइना लेके आया है। एक BRI का है, मेन कंपोनेंट है ये। रसिया क्या लेके आया है? सोवरेन इंटरनेट लॉ, क्रिएटेड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेट इन रसिया। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग has banned public access to several OTT platforms for streamlining obscene content. More in the news, they are banned under the Information Technology Act 2000 and the Information Technology Guidance and Digital Media Ethics Code 2021. The Supreme Court in Ranjit D. Udesi versus State of Maharashtra 1965 defined obscenity as a reasonable restriction to free speech. Article 19 is need to क्या है? कंटेंट रेगुलेशन, सोसाइटल रीच एंड इन्फ्लुएंस के लिए विथ मोर देन 950 मिलियन पीपल हैव एक्सेस ऑफ द इंटरनेट। यही क्वेश्चन पूछा था ना यूपीएससी, ये यूपीपीसीएस। अनरेगुलेटेड कंटेंट कैन इन्फ्लुएंस डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसके बाद है क्रैविंग वायलेंस एंड वायलेंट बिहेवियर,
behavior. 2010, a study analyzed pornography videos and founded almost 90% of the census content physical aggregation. यहाँ से 2 क्वेश्चन बना था, एक तो 950 वाला और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में यहाँ पे समझ में आया ना कि अगर मोरालिटी वगैरह से भी अगर ये हो, मतलब दिक्कत हो तो आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते। हम्म, वही ना, हम ओनली 1 मारे थे, आप 1 और 2 दोनों मारे तो हो गया बाद में। हाँ। अरे यार मत बोलो बीपीएससी का, दिमाग खराब। उसके बाद है बहुत सही में मेरा भी है बहुत। children early exposure to explicit content distorts children understanding a healthy relationship and sexuality. Women में क्या है, such content often objectify women, perpetuating gender inequality and normalizing violence against women. Minority में क्या example, online hate speeches can fuel societal division and endangering minority. Ethical imperative में क्या है, uncontrolled dissemination of degrading material can alter social norms, values, institution of family, etc. Harm to the society क्या है, 2021 बुल्ली बाई ऐप इंसिडेंट। ठीक है, बुल्ली बाई सुने आप लोग? हाँ, इसको सुने थे। मुस्लिम मुस्लिम वुमेन्स का फोटो सब ले करके हाँ में डाला। हाँ, वेयर इमेज ऑफ द वुमन आर ऑक्शन ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे ऑक्शन किया जा रहा था। JS Mill harm principle permits limiting individual liberty when it's cause harm to the others or degrades social well-being. तो JS Mills का है ना जो हार्म प्रिंसिपल, वो परमिट करता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को आप कंट्रोल कर सकते हो जब वो डिग्रेड करता है क्या, सोसाइटल वेलबींग को। अच्छी चीज है जीएस मिल्स क्या। उसके बाद है ह्यूमंस एज ए मीन्स, क्या है, कंटेंट दैट रिड्यूस पीपल टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल इंटरेस्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कैटेगोरिजिकल imperative of Kant, which dictates against the using humanity as a means to end unequal impact. According to Indian Policy Foundation law, income people with poor digital literacy are more exposed to obscene content. Regulatory framework for regulation of obscene content में क्या है, the IT Act 2000, the section 67 and section 67A deals with the publication and transmission of the obscene content in electronic form. Section 69A empowers the central government to direct blocking of public access to information in the specific ground. Section 79 में क्या है, grants safe harbor protection of intermediaries including OTT platform from liability for the third party content. However, they could lose the protection if they fail to remove unlawful content upon receiving notification from the government. IT Rule 2021 under IT Act 2000 is issued by the Ministry of Electronics and Information Technology, MIT. It places digital news media and OTT platform under Ministry of Information and Broadcasting Ministry. Section 294 of the Bharatiya Nyaya Samhita defines the term obscene, criminalize the dissemination of the material including those in electronic form. Protection of the children from sexual offense, POCSO Act है made the sale and distribute of the child pornography illegal. ठीक है, तो इसमें ये है। उसके बाद इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन Prohibition Act 1986 prohibit the publication and distribution of materials containing indicate the representation of women. वैसे गवर्नमेंट ने तो बहुत सारा पोर्न साइट को बैन किया था ना कुछ दिन पहले। वो सारा जितना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे था ना जो बदतमीजी फैला हाँ, रहा था वो बैन करा है। चैलेंजेस क्या है रेगुलेटरी कंटेंट में, क्या है रेगुलेटरी ओवरलैप है ना।
माइटी के बीच में है, आईटी रूल है, एमआईबी के बीच में है। उसके बाद है सब्जेक्टिविटी इन डिफिनीशन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज में क्या, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, प्राइवेसी फीचर्स अलाउ द सेफ स्प्रेड ऑफ इलीगल कंटेंट विदाउट स्क्रूटनी। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन से क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, ट्रैप यूजर इन द फेसबुक लूप, सॉरी फीडबैक लूप। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से भी होता है, इनेबल यूजर टू बाईपास रेगुलेटरी ओवरसाइट अलाउइंग एक्सेस टू prohibited website and content. Creative freedom bans on the strict regulation can stifle creative freedom and infringe the constitutional right freedom of speech and expression under 19 clause A clause first clause A. Ban on films such as Fire about the homosexuality. अच्छा, इंडिया में बैन कर दिया फायर को। अच्छा, आज ही देखता हूँ इस मूवी को मैं। कैसी मूवी थी, क्या है? हम्म। मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है, ठीक है। यूजर, ये सब वे फॉरवर्ड है। यूजर टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथिंग सेल्फ रेगुलेशन, हाँ, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। इसमें क्या है, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अनवेल द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। दिस इज द ओनली द सेकेंड सच पॉलिसी फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर आफ्टर द फर्स्ट इन 2002, ठीक है। 2002 के बाद पहला है ये। विजन क्या है, टू मेक कोऑपरेटिव्स अ की ड्राइवर फॉर द विकसित भारत 2047 थ्रू द शक्कर से समृद्धि, सॉरी सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। हाँ। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग 50 करोड़ सिटीजन हु आर आइदर नॉट अ मेंबर और आर इनएक्टिव इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इनटू द एक्टिव पार्टिसिपेशन। पॉलिसी इनविजन क्या है, 6 स्ट्रेटेजिक मिशन पिलर है इसमें, ठीक है। इन्फोग्राफिक कि ये देख लेते हैं यहाँ से, स्ट्रेटेजिक पिलर कोऑपरेशन ग्रोथ में क्या है। फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन है, वाइब्रेंसी एंड इनोवेशन, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, इंक्लूसिविटी एंड रिसर्च, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है, यूथ इंगेजमेंट है। की फीचर्स ऑफ द पॉलिसी इंक्लूड क्या, लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, बिजनेस इकोसिस्टम डेवलपमेंट, क्या है, फ्यूचर रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी। न्यू सेक्टर में क्या है, कंसीडर एक्सपांडिंग कोऑपरेटिव्स इनटू न्यू सेक्टर्स इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इंक्लूसिविटी में क्या है, प्रमोट इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यूथ, SC ST। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, बाय इम्प्लीमेंटेशन सेल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मॉनिटरिंग में क्या, बाय द नेशनल स्ट्रिंग कमिटी ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। उसके बाद है कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। ऑरिजिन कब हुआ है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आया था 904 में, ये इंपॉर्टेंट है ऑरिजिन। डिफिनेशन में क्या है, इट इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ द पर्सन यूनाइटेड वॉलंटरी टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पायरेशन थ्रू अ जॉइंटली owned and democratically members control enterprises. India has more than 8 lakh cooperative society. 2 लाख, हाँ, 2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव, एग्जांपल पैक्स वगैरह है जो है ना, बिहार में पैक्स ही चलता है। पैक्स का फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता। नहीं पता। बोलिए। प्रिकॉर्मेंट एसोसिएशन करके कुछ है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ओके, पैक्स। जहां जहां पे मंडी नहीं है वहां वहां पे लगभग पैक्स कर दिया है, ठीक है। एंड 6 lakh non-credit cooperatives, consumer housing cooperatives. More than 30 crore people are associated with cooperatives in India.
टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या है? हाउसिंग, डेयरी एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। यहाँ लिखा भी था, है ना? पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में क्या है? 97th अमेंडमेंट आया है 2001 में 11 में। ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी विद द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में क्या है? एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज सी। इसी का चर्चा कर रहे थे ना हम लोग उस दिन, याद है? कहाँ पे हाँ, कुछ तो हाँ, कर रहे सही, थे। सही। हाँ, फंडामेंटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आर्टिकल 19(1) ये फंडामेंटल राइट भी है। 43(b) के अंतर्गत ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है। हाँ, इंसर्टेड इन 43B टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स। उसके बाद है 9 का बी है, इसमें आर्टिकल 243 जेड एच से लेके जेड टी तक है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए बात किया। तो इसका मतलब ये है, ये फंडामेंटल राइट में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है और पंचायती राज में भी है। पंचायती राज में भी है और म्युनिसिपैलिटीज में भी। हाँ, म्युनिसिपैलिटीज में भी है। उसके बाद है अच्छा, आर्टिकल 43(b) एग्जैक्टली कहता क्या है? क्या कहता अरे, है? एक सेकंड रुको। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो पार्ट की पार्ट में भी है ना? मैं बताता हूँ। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ही कहता है 43B। इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 43B इंसर्टेड इन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया एंड ensure democratic autonomous functioning of cooperatives. Text of Article 43B. The state shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, and democratic control and professional management of cooperative society. Key features में क्या है? DPSP. It guides the state to promote cooperatives as instrument of economic development. Voluntary formation में क्या है? No coercion. Member freely associated with mutual benefit. Autonomous functioning में क्या है? Ensure minimal government interference. Democratic control है. Related provision 97th अमेंडमेंट में वही बताया है, पार्ट 9B में है, ठीक है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इससे हाँ, रिलेटेड है। हाँ, बोलो जी। हम लोग ये गलत बोल रहे थे। पार्ट 9(a) है तो आपका इसमें म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। पार्ट 9(b) कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, गड़बड़ कर रहे थे। नहीं, पार्ट पार्ट 9। 9 अच्छा, पार्ट 9(a) आपका है म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9 है आपका ये पंचायती पंचायती राज, राज, हाँ। 9 है म्युनिसिपैलिटीज अच्छा, इसके और लिए अलग से ही 9(b) है। है। हाँ, 9(b) है ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, ठीक है ठीक है। वही। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह 2021। The court partially struck down the 97th amendment for the lack of rectification by the half of the state. Held valid for the multi-state cooperative society cooperatives, but invalid for the state cooperatives. क्या हुआ इसका मतलब? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बैकग्राउंड क्या है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 43B पार्ट 4 DPSP, ठीक है। डिटेल्स प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इट कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? फेडरल वायलेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द एंट्री ऑफ 32 of the state list. Hence, Parliament could not amend provision affecting the state without rectification of the state at least half. ठीक है, state legislature. Partial invalidation में क्या है? The amendment was not rectified by the half of the state, so the part dealing with the state cooperative was declared unconstitutional. इसका मतलब ये हुआ कि वो rectification लिया नहीं था half state से, तो जो उसमें कोई भी जो टर्म होगा जो स्टेट से डील करता होगा वो
उसको अनडिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। Valid for multi-state cooperatives. The amendment remains valid for multi-state cooperative society since they fall under the union's legislative domain. Article 43B remains intact as directive principle of state policy. Article 43B was not struck down because they only directs the state efforts without altering the legislative power. ठीक है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स होगा, ठीक है, फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स है जो यूनियन लिस्ट में है और स्टेट कोऑपरेटिव्स है जो स्टेट लिस्ट में है। Significance of the cooperative uplifting the rural economics by fostering financial inclusion. About 1/3 of the India's rural population directly connected with cooperatives. Boost to farmer income. Societal impact. Empowering women. ठीक है, सेवा cooperative bank enable microfinance leading to women employment and gender equality. ये सब को वर्किंग होते हुए देखे हो? हम मैं तो बिल्कुल नहीं। मेरे मेरा गांव गाँव हाँ बोलो पहले। मेरे गाँव में कुछ भी नहीं आता है। मतलब क्या बताएँ, मेरे गाँव को बहुत एकदम हाशिए पे है मेरा। मैं बताता हूँ, अगर मेरे नज़र से तुम देखो ना, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो स्कैम करने का अड्डा है। मतलब सरकार को मतलब कैसे, मतलब फंडिंग में घोटाला करना है, मेरे नज़र से देखते हुए ये सब चीज़। मैं जानता हूँ कोऑपरेटिव बैंक को, वहाँ पे उन्हीं लोगों का पहुँच है जो गाँव लेवल पे नेतागिरी करता है, पंचायत लेवल पे। वही लोग सब पैसा लेता है, वही लोग इधर से उधर करते रहता है। गरीब का कोई लेना-देना नहीं है इन सब चीज़ों से। Challenges for cooperative: limited capacity and resources, complex regulatory requirement, lack of familiarity with digital tools, regional imbalance. Other challenges: skilled workforce shortage, lack of cooperation among the cooperative, limited membership and resources. उसके बाद है PRI फाइनेंस। PRI मतलब क्या हुआ? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। Recently, a standing committee on the rural development, Panchayati Raj, presented a report about the devolution of fund under the Panchayati Raj system. More in the news, the report flags the partial devolution of the 3F function fund functionaries are still plugging the PRIs despite 3 decades 73rd constitutional amendment. 3F में क्या है? फंक्शन फंड एंड फंक्शनरीज, पार्शियली डिवोल्यूशन। उसके बाद है सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ पीआरआईज, क्या है? टैक्स डिवोल्यूशन एंड ग्रांट्स ऑफ द फंड्स फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों देता है। ऑन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, आर्टिकल 243H of the constitution empower the panchayat to impose, collect and allocate taxes, duties, tolls and fees। तो ये लोग करता कहाँ है कुछ? अदर सोर्सेस में क्या है? पंचायत ऑल्सो रिसीव फंड फॉर एग्जीक्यूटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एग्जाम्पल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। हाँ बोलिए। अरे यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 243H जो है डील करता है, मतलब कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो इम्पोज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं टैक्स, हाँ फीस वगैरह। वहाँ पर हाँ कभी करता है, आपके गाँव में तो लेगा तो उसको बनाएगा ही नहीं दूसरी बार। हाँ, हम नहीं, मतलब कि जैसे कि बहुत सारा चीज है ना, फेयर वगैरह लगता है, ठीक है। मेरे गांव में लगता है मेला, तो वो सब तो नहीं करता है कुछ, बस ऐसे ही सब घिस पिट के। उसके बाद इशू विद द फाइनेंस पीआरआईज, क्या है? ये बस आर्टिकल इसमें याद रख लो, 243H। Yes. डिक्लाइन बजटरी एलोकेशन। हाँ बोलो। H से कैसे याद रखें? एच कैश, CASH। ESH। दो लोगों से प्यार करोगे तो कैश का जरूरत पड़ेगा ना। 143 समझते हो ना? यह है 243। जो 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 प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, तो ये 243 है, ठीक है। उसके बाद है इम्बैलेंस इन द टाइड एंड द यूनाइटेड ग्रांट्स, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है?
50th Finance Commission grant PRIs were the 40% क्या है? United. PRIs 40 United. United. Untied. Untied. Flexible use. Flexible use, untied. 60% tied, a specific purpose like the sanitation, unused in the work, unused if work is done. This leads to क्या बात है? बाहर बैठी होंगी। उसके बाद है delays in the पंचायती इलेक्शन ड्यू टू द लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। क्या है? तेलंगाना इम्प्लीमेंटेड ऑफ द ओबीसी रिजर्वेशन हैज लेड टू डिलेज। ठीक है। अच्छा, अभी कौन सा स्टेट है जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की है? ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? बताओ। तेलंगाना है शायद। आंध्र प्रदेश है। KGP। उसके बाद इशू इन द फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। ठीक है। इरेगुलर कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, जल्दी बनाता नहीं है लोग। पुअर कंप्लायंसेस इन द अपलोडिंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है। उसके बाद है वीक ऑन रिसोर्सेस रेवेन्यू OSR जनरेशन, ये सब है। इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंस फॉर द PRIs क्या है? रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए भी है ना। एजुकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एजुकेशन कौन कौन से लिस्ट में मेंशन है? कौन से लिस्ट में है एजुकेशन? कॉन्करेंट नहीं, हाँ कॉन्करेंट। और हेल्थ? करंट। हेल्थ भी कंकरेंट। हेल्थ कंकरेंट है। फुल। हाँ कॉन्करेंट। हेल्थ स्टेट लिस्ट में है भाई। अच्छा नहीं सर, मैं तो एजुकेशन का बोल रही हूँ। 5 है। सुनियो 5 है। एजुकेशन, हेल्थ, हाँ, उसके बाद क्या नाम है, वेट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद आप क्या नाम है उसका, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और एक तो है कुछ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन। सर्च करना जरा, हेल्थ किस में है? हाँ, एक मिनट। स्टेट लिस्ट में होना चाहिए हेल्थ। नहीं सर, हेल्थ नहीं होगा। इन दिस लिस्ट इस- स्टेट में है सर। है ना, स्टेट में। ये प्रपोजल करा है कि टू मूव हेल्थ टू द कॉन्करेंट, बट अभी तो जो है वो स्टेट में है। हाँ, सुनो इसलिए है कि अगर ये कंकरेंट लिस्ट में होता ना तो एक्ट बनाता, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी बना रहा है, तो ये पॉलिसी तभी बना सकती है नेशनल लेवल पे जब वो उस लिस्ट में नहीं रहता है। चाहे तो अगर लिस्ट में रहेगा तो सीधे एक्ट बना सकती है नेशनल गवर्नमेंट। ना सर, आप लोग पढ़े थे ना? हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, खेलो इंडिया वाला, ऐसे करके। तो वही मतलब हाँ, ठीक है, हाँ मैं समझ गया भाई, हाँ पढ़े थे हम लोग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था वो, मुझे वो ट्रेड याद आ रहा था। हाँ ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो मैं 5 बोला ना, ये आई थिंक 40 मैं बता रहा हूँ क्या क्या था। हाँ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स। ठीक है। Constitution and organization of all courts except सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। ये सब क्या है? ट्रांसफर किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। 42nd से मतलब 5 आया था। तो वो 5 जो हम लोग अभी बोल रहे थे वो 5 उसी समय। और कितने सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में? स्टेट में अभी मतलब भूल गया। देखिए 100 तो है यूनियन में, ठीक, और स्टेट में 62। कितना है जी? एक मिनट देखती हूँ। मैं देख के बताओगे, ऐसे बताना है। 61। 61 हाँ, और 50 तो है कंकरेंट में ना। नहीं, ये क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट में 100 बता रहे हो?
हाँ, गलत है, 97 होना चाहिए। नहीं, देखो, देखो, हाँ। देखो बस, और देख और जो स्टेट ये कंकरेंट लिस्ट में है, कितना बता रहे वो हो? कॉन्करेंट में कितना बता रहे हो? 52 होगा कॉन्करेंट में। हाँ, और यूनियन का? यूनियन 97। यूनियन का हम्म। और जो इसका क्या बोलते हैं यूनियन में स्टेट का 97 मैं कह रहा हूँ, और जिशान कह रहा है 100। सर तो सही है। बताओ अभी तो ये। 100 हो चुका है यूनियन हाँ, में। कहाँ से देख रहे हो आप? मैं सही है सर। मैं देख रही हूँ वाजीराम से। अरे बाजीराव। अभी ओरिजिनल नंबर 97 था, जो 7th शेड्यूल में क्या कहते हैं से ऐड किया था, लिया था 97। और अभी देखो 100 हो गया। और स्टेट का था 61 और कॉन्करेंट का था 52। बस। ठीक है, लिख और लो कहीं। स्टेट में जो पहले 66 था, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से शिफ्ट कर दिया उसको कंकरेंट में, तो वो हो गया 61। और पहले था कंकरेंट में 47, जो कि 5 जोड़ दिए तो 52 हो गया, यही ना? ठीक है। ठीक है, उसके तो बाद इनिशिएटिव टू इम्प्रूव फाइनेंस ऑफ पीआरआईज क्या है? ऑडिट, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह है ना, स्वामित्व स्कीम वगैरह जो आया ये सब है। उसके बाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब देखते हैं, द रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट फॉर्म इन 1986 has got an extension of the another year to resolve water sharing issue between Punjab, Haryana and Rajasthan. More in the news. Also, center will constitute a high-level technical committee to examine concern around the Polavaram Vang क्या है Vankan Cherela link project. बाना Bang चेरला Cherla link. ठीक है. बाना लिंक। And other pending interstate water issue between Telangana and Andhra Pradesh. Additionally, Odisha and Chhattisgarh expressed willingness to resolve Mahanadi water dispute amicably. Interstate water dispute in India can be traced back to the British colonial period with Kaveri water dispute between British controlled Madras Presidency and princely state Mysore. तो यहाँ से आ रहा है, ब्रिटिश और वो लोग लड़ाई कर रहे थे। ऐसा नहीं है ब्रिटिश लोग सिर्फ लूट रहे थे, मतलब वो लोग चाह रहे थे कि कुछ विकास भी हो। और इंडिया के राजा से ही लड़ाई कर रहे थे, मतलब इसलिए वाटर के ऊपर भी, सिर्फ लूटने के लिए नहीं। रीजंस फॉर ISWD क्या है इसमें? असिमेट्रिक एक्सेस ऑफ रिवर वाटर रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस आ जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइज हुआ है ना, boundaries state have emphasized less on the river basin. Increased demands, rapid population growth, agriculture expansion, urbanization, economic development. उसके बाद है development project. Dispute often arises when one state develops major water resources project like dams, नर्मदा, कावेरी basin में हो गया. Fragmented water government approach. क्या union government? Lack of a structure for the governance. Interstate water dispute. State government divergent perspective है. रिडक्शनिस्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, अनसाइंटिफिक अप्रोच, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन है ना, वेस्ट मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर डाटा, नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा कलेक्शन ऑफ द रिवर वाटर रिलेटेड टू इट्स फ्लो वॉल्यूम etc है। उसके बाद है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू रिजोल्व डिस्प्यूट। आर्टिकल 262 provide for the education of interstate water dispute. Parliament by the law can provide for the education of any interstate water dispute. क्या कह रहा है? आर्टिकल 262 है, ठीक है, प्रोवाइड्स education for inter-water dispute. Parliament by law can provide education of any interstate water dispute. Parliament may also provide that neither Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect to any such dispute. तो ये बात है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम लोग
तो वहाँ दे देगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, हमें लगेगा सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं कर सकती? नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा करता। उसके बाद एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर द आर्टिकल 262 of the Constitution, Parliament has enacted two laws. The River Board Act 1956, the empower Union Government to establish River Board for the regulation of interstate rivers and river valleys of consultation with state government. Interstate Water Dispute Act 1956. Union government can establish a tribunal for the adjudication of interstate river water dispute if requested by a state. 7th शेड्यूल में क्या है? एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर। तो यूनियन लिस्ट में है ये रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर। स्टेट लिस्ट में क्या? वाटर। तो वाटर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का। That is to say, water supplies, irrigation, canals, drainage, embankment, water storage, water power subject uh, to the provisions of entry 56 of list first. Challenge is resolving ISW क्या है? Delays, extreme delays are major issue. उसके बाद है constituting tribunals, Kaveri tribunals from 1990s after decades of pending request. Tribunal award delivery, Narmada 9 years, Krishna 4 years, गोदावरी इतना दिन में तो ये लोग मतलब जजमेंट सुना रहे हैं, है ना? उसके बाद है पोलिटिसाइजेशन हो जा रहा है, लैक ऑफ स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन है, इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन सब वजह से। उसके बाद है अदर मेजर्स टू टेकन अवे टू रिजोल्व आईएस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है? एक बिल आया 2019 में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी टू रिजोल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट एमिकेबली established of the single state interstate river water dispute tribunals with multiple branches, a strict timeline for completion of award, data bank at the central level for each river basin, draft river basin management bill 2018। ऑब्जेक्टिव क्या है? द बिल प्रपोज principled approach of participation, cooperation, equitable and sustainable use of water, integrated river basin management, creating river basin master plan, establishment of river basin authority, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें क्या? इट्स एम टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम सरप्लस रीजन टू डिफिसिट रीजन, पोटेंशियली रिड्यूसिंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। वे फॉरवर्ड में क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, पॉलिसी इंटरवेंशन, आईएसडब्ल्यू, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, डाटा बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्यों न्यूज में था? कितना है भाई पॉलिटिक्स? अच्छा ठीक है। Observer Research Foundation (ORF), supported by the Westminster Foundation for Democracy, conducted a case study of India's cost of politics। क्या नाम रखा है? Cost of politics, focusing on spending by candidate contesting political office। Major funding of the study क्या है? Escalating campaign cost। Major party Lok Sabha candidate spend 5 to 10 crores higher in the competitive or wealthy state like तमिलनाडु में ज़्यादा होगा, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है राइजिंग। हाँ, अच्छा, पार्टी पूरी पार्टी कर रही है 5 से 10 करोड़। मैं सोचा एक सिंगल कैंडिडेट। कैंडिडेट की बात है भाई। नहीं मतलब यह टोटल पूरे पार्टी की बात कर रहा नहीं है नहीं कि नहीं, मेजर बिल्कुल पार्टी? नहीं। मेजर पार्टी लोकसभा कैंडिडेट। भैया 5 से 10 करोड़ तब कैसे करेगा ये लोग काम बाद में? ये सब निकालना भी तो पड़ता होगा इनको। हाँ भाई। उसके बाद राइजिंग रूटीन भाई, मुखिया लोग कर देता है 20-25 लाख रुपया खर्च, ठीक है। राइजिंग रूटीन पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर क्या? इट इंक्लूड्स अटेंडिंग कम्युनिटीज इवेंट, सपोर्टिंग कंस्टिट्यूएंट, सस्टेनिंग पार्टी एक्टिविटीज। अब अभी देखो जेपी नड्डा का 1.5 किलोमीटर का रैली था, 1.5 से 2 किलोमीटर, ठीक है। और उनके पूरे रास्ते में फूल छींटना है।
अब एक घर में फूल छींटने वाले को 500 रुपया दिया, तो 1.5 किलोमीटर में कितना घर होगा? हर एक 20 फीट में एक घर होता है। अब जोड़ लो तुम कितना खर्चा पड़ा होगा। फ्लावर्स का अलग से कॉस्ट। वैसे लिमिट क्या है बता सकते हो आप लोग? जो स्टार कैंपेनर है वो कितना उसके ऊपर खर्च होगा तो वो नहीं जोड़ा जाएगा, कितना तक? स्टार कंपेनर का तो आई थिंक जोड़ा ही नहीं जाएगा। जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। स्टार कैंपेनर का अलग लिमिट है, नॉर्मल कैंपेनर का अलग है। 40 स्टार कैंपेनर हो सकता है। 40 स्टार कंपेनर हो सकता है जो नेशनल पार्टीज है और जो क्या नाम है, नेशनल बोलते नहीं, जो रिकॉग्नाइज्ड है। जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है वो शायद 20 या ऐसा ही कुछ है ना। सर हम्म चेक कर लो। हाँ हम्म। कर ली। जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है वो 40 स्टार का है, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनका 20 है। 20 है, बिल्कुल। ठीक है। और इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर लिमिट है कैंडिडेट की 95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लार्जर स्टेट और 75 इन स्मॉलर स्टेट। हाँ, ये लिख रहा है ना असेंबली ये यहाँ इलेक्शन पे। में देखो, जो लोकसभा इलेक्शन में है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वो 95 लाख से 1.25 करोड़ है। ये लिख रहा है। ऊपर नीचे ऊपर कीजिए। अरे ये तो भी या- रिस्पॉन्स यहाँ नहीं, ये इस टाइप एक कर रहे थे सेकेंड चुनाव। मैं कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ठीक है, तो यहाँ से ये असेंबली इलेक्शन में 40 से 95 लाख हो सकता है। स्टेट से वैरीज करेगा, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में 95 लाख से 1.25 करोड़ हो सकता है। अच्छा, स्टार कंपेनर का जोड़ता है कि नहीं? मुझे तो पता है कि बिल्कुल उसका खर्च नहीं आता है। A recognized political party can nominate 40 star campaigner. Cost of the travel and campaign of a star campaigner is not added to the election expenditure of a candidate if the rally or the event organized by the political party, not the candidate. ठीक है, तब पॉलिटिकल पार्टी करेगा तब नहीं जुटेगा, लेकिन अगर जो कैंडिडेट करेगा तो जुटेगा। द स्टार कैंपेनर स्पीक्स इन द जनरल सपोर्ट ऑफ द पार्टी एंड नॉट इन द फेवर ऑफ a specific candidate. Example, if Rahul Gandhi as a Congress star campaigner holds a rally for the all-party candidate in a district, the expenses of the party are the borne by the party. देखिए, मैं जो निकाला हूँ ना, हम्म उसमें क्या बोल रहा है? देखिए, expenditure made by star campaigner is not added to the election expenses of a candidate if the campaign is organized and paid for by the political party. अगर हाँ। पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन कर रही है, उसको ऑर्गेनाइज कर रही है तो नहीं जाएगा, ठीक। और दूसरा कंडीशन है, इफ द कैंडिडेट इज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट कैंपेन, अगर उस कैंपेन में प्रेजेंट नहीं है कैंडिडेट तो उसका तो ये जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक मतलब ओवरऑल ये है कि स्टार कैंपेनर का नहीं जुटता है। ठीक है। हाँ, वो लोग इधर से उधर बैकडोर निकाल ही लिया होगा। Social media spending requires fund for the tech expert, influencer, profile, upkeep, and the ads, but is still cheaper than rallies, transport, food, and
वर्कर पेमेंट्स। उसके बाद है डाइवर्स कॉस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ये सब जानते ही हो यार। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हाई कॉस्ट इन इलेक्शन, क्या implication of the governance, growing business politics nexus, high cooperative funding can skew policies towards financiers interest, wealthy mining coal है ना, कोल रियल एस्टेट ये सब करता है फंडिंग उसको। उसके बाद है फंडिंग फोकस, करप्शन रिस्क। अभी फंडिंग कैसे आ रहा होगा उनको, अब तो इलेक्टोरल रोल बंद हो गया है फिलहाल। भाई पुराने तरीके से अच्छा ये जितना जितना आएगा आपको बताना होगा जा करके। अच्छा ठीक है। उसके बाद है लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग, क्या है, ग्लोबली सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना, निकारागुआ है लोअर देयर वोटिंग एज 18 से 16 साल कर दिया है। करना चाहिए। बच्चे तो जवान हो जा रहे हैं आजकल, जल्दी कर ही देना चाहिए, समझदार भी हो जा रहे हैं। उसके बाद है यूके ऑल्सो अनाउंस द प्लान टू रिड्यूस 18 to 16 in India Constitution Amendment 2020 was proposed to amend Article 326 to reduce the voting age from 18 to 17. It was a private member bill था ये, ठीक है। उसके हाँ, अब किस में अमेंडमेंट होगा, 326 में, ठीक है। तो एडल्ट सफरेज के बारे में आर्टिकल 326 की बात करता है ना। हाँ 324 इलेक्शन कमीशन। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू वोटिंग इन इंडिया। Article 326 provide for unfavorable adult suffrage for every citizen who is not less than 18 years of the age. India reduced the voting age from 21 to 18 in the 61 constitutional amendment 1988 राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय। उसके बाद से ही 3 जो मतलब 2 सहायक चीफ इलेक्शन कमीशन के होने लग गए, ठीक है। Right to vote is a statutory right that can be amended by the ordinary law of the parliament। तो ये ध्यान रखना है, यूपीएससी पूछा है कि वोटिंग राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है। हाँ, उसके बाद आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ द लोअरिंग एज ऑफ वोटिंग, क्या है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी। अ सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट्स contended that 16-year-old possesses sufficient cognitive and critical thinking capacities for independent political decision in intergenerational equity, while those under 16 are currently excluded in the most countries. Adults are allowed to vote without maximum age limit. This creates the inherent bias that is a political system that favor an older electorate and act against forward looking policy making। मतलब ये समझ रहे हो ना क्या कह रहा है, बुढ़ा लोग वोट करेगा तो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के खिलाफ में वोट दे सकता है, मतलब ऐसा कोई पार्टी रहेगा उसके अगेंस्ट में। उसके बाद है Borden election manifesto. Lowering the voting age would also broaden the election manifesto with the greater focus of child right, equality, education, and gender justice, increase political engagement and representation. Lowering the voting age could increase the political engagement among youth, fostering a habit of voting early in the life and strengthening democracy। मुझे तो लगता है बच्चा लोग का माइंड वॉश हो जाता है, मतलब कि है ना। उनके अंदर वो इतनी ज्यादा वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग। हाँ, तो वो बस कोई 10 बात उसको बता दिया ना, तो उसी का वो लगातार फिर सपोर्ट करता जाता है ऐसे। जब किसी फैमिली में अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होंगे तो वो उसका फिर माइंडसेट वही बना देंगे। हाँ, वही बना देंगे और वैसे ही मतलब हो जाता है माइंड वॉश। उसके बाद है एक बिहार का लड़का था 8-9 साल का। उसके बाद है perceived lack of maturity and knowledge। उसके बाद क्या है, critics argue adolescents often lack of cognitive ability, adequate information and political engagement, making them
prone to manipulation in the political decision making. Low turnout in 2024 Lok Sabha election, under the 40% of 18 to 19 old are registered to vote. Inconsistency with the age threshold. क्या है? Lowering the vote age may spark debates on reducing other legal age limit for marriage. मैरिज का तो और बढ़ा दिया ना, 21 साल कर दिया। महिलाओं का और पुरुष का क्या किया? पुरुष का भी 21 है, महिला दोनों। पुरुष का नहीं बढ़ाया। ओके, उसका 18 ही होगा। अरे 21 21 था पहले। अच्छा, हाँ। महिलाओं का 18 था। सॉरी। उसके बाद है अल्कोहल परचेज के लिए भी बढ़ा, मतलब तुम वोट लेने के लिए तो बढ़ा दोगे, तो हमको दारू खरीदने के लिए अधिकार दो, मिलिट्री सर्विस में भी जाने के लिए बोलो, क्योंकि हम समझदार हो गए हैं भाई, वोट दे सकते हैं तो ये सब काम क्यों नहीं कर सकते हैं? शादी तो कर ही सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्शंस करने लग जाएंगे। उसके बाद है लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, expanding the electorate to include 16 to 17 years old would require to large scale voter registration, derives awareness campaign and infrastructure adjustment, increasing cost and operational complexity. अब न्यूज इन शॉर्ट्स खत्म कर दें क्या? कितना पेज है? अरे तो है, ज्यादा हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, रहने देता हूँ। अभी 3 दोस्तों